ओके बेटा, आज स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में आज का पहला टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास तीन लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। स्टार्ट करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। लिखें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिखो। इट स्टेट्स दैट it states that if two it states that if two systems are in thermal equilibrium, if two systems are in thermal equilibrium with a third system separately, if two systems are in thermal equilibrium with a third system separately, then these two systems are also said to be in thermal equilibrium with each other. Then these two systems are also said to be in thermal equilibrium with each other. मतलब ये हुआ, अगर A और C आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B और C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है separately, then A and B are also said to be in thermal equilibrium with each other. ठीक है? एक बार डेफिनेशन रिपीट कर दोगे फिर से? लॉ लिखो. It states that if two systems are said to be in thermal equilibrium with a third system separately, then these two systems are also said to be in thermal equilibrium with each other. ठीक है? यस सर। कहने का मतलब, अगर हम ये कहें that heat gained by system A is equal to heat lost by system C, तो both are said to be at the same temperature. यानी कि अगर ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो टेम्परेचर A इज इक्वल टू टेम्परेचर C, और ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो देन टेम्परेचर B इज इक्वल टू टेम्परेचर C। कहने का मतलब बॉडी A जो थी वो C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी B जो है वो भी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है? Yes, sir. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम? क्या मतलब क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम का?
लिखो थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। लिखो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम लिखो। A system is in a state of thermodynamic equilibrium a system is in a state of thermodynamic equilibrium if the macroscopic variables if the macroscopic variables ब्रैकेट में लिखेंगे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो एक बार रिपीट करना थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद। A system is in a state of thermodynamic equilibrium if macroscopic variables ब्रैकेट में लिखेंगे PVNT। सर मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो macroscopic variables ब्रैकेट में लिखेंगे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इसके अंदर अगर आप चाहें तो मास और कॉम्पोजिशन भी ऐड कर सकते हो। So these are 5 thermodynamic equilibriums or thermodynamic variables. तो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स तक लिखने के बाद ब्रैकेट में पांचों लिखें, ब्रैकेट क्लोज, that characterize the system do not change with time. Do not change with time. यानी किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर अगर ये पांचों वेरिएबल्स और एक्चुअली थर्मोडायनेमिक सिस्टम को ये 5 वेरिएबल्स कैरेक्टराइज करते हैं, एंड इफ दे रिमेन्स सेम ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या ओवर द लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, तो हम ये कहते हैं कि the system is in thermodynamic equilibrium, यानी system is not changing, then it is said to be in thermodynamic equilibrium। ठीक है? ओके सर। और बहुत क्लियरली जैसा कि हमने यहाँ पर बता ही दिया, two systems are said to be in thermal equilibrium if their temperatures are equal। ठीक है? यानी temperature of A if it is equal to temperature of C, then A and C are said to be in thermal equilibrium। If the temperature of B is equal to temperature of C, then B and C are said to be in thermal equilibrium। अब A और B C के साथ separately thermal equilibrium में है, तो this is interesting कि A और B भी आपस में thermal equilibrium में होंगे। ये तो एक तरह की मैथमेटिकल इक्वेशन ही हो गई। ठीक है? So zeroth law of thermodynamics clear है? यस सर। यस सर। लिखें बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
देखो फर्स्ट लॉ, it states that the total amount of heat given to a system, the total amount of heat given to a system gets dissipated into two parts. The total amount of heat given to a system gets dissipated into two parts. First, in increasing the internal energy of the system, and second, in doing some work. फिर से बोल रहा हूं, it states that the total amount of heat given to a system gets dissipated into two parts. First, in increasing the internal energy of the system, and second, in doing some work. अब जहां आपने लिखा in doing some work, वहां ब्रैकेट में लिख लेना during expansion or compression. During expansion or compression. लिख लिया? Yes, sir. देखो, अगर मेरे पास एक सिस्टम है and this system is basically a cylinder fitted with a movable piston, and this cylinder contains 1 mole of an ideal gas. अब जब हम इस सिस्टम को कुछ हीट प्रोवाइड करेंगे, लेट्स से Q is the amount of heat given to the system, its walls are non-conducting and its base is conducting only. आपने इसको कुछ हीट प्रोवाइड करी Q. अब ये हीट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हमने स्टेटमेंट दी, दिस हीट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी इस Q को हम दो पार्ट्स में चेंज होता देखेंगे. सबसे पहले जैसे ही आप जो हीट दोगे उससे होगा क्या, उससे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग. तो Q इज इक्वल्स टू U, यानी U इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अब मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, इट मींस कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. मॉलिक्यूल्स आर नाउ मूविंग रैंडमली विद ग्रेटर वेलोसिटीज, और ऐसा करते हुए दे कोलाइड विद ईच अदर, or they collide with the walls of the container or with the surface of the piston, and when they do so, they also the temperature of the gas also gets heated up. It means it also gets increased. जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा, गैस विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग, और जब गैस एक्सपैंड करेगी तो पिस्टन मूव करके लेट से इस पोजीशन पर आ गया, तो पिस्टन ने कुछ डिस्प्लेसमेंट की x. अब पिस्टन ने जो डिस्प्लेसमेंट की x, ये पिस्टन का एरिया था A, मॉलिक्यूल्स आर हिटिंग द सरफेस ऑफ द पिस्टन, तो यहां पर एक फोर्स जनरेट हुई, तो हम कह सकते हैं कि कुछ वर्क डन हुआ. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैथमेटिकली कैन बी रिटन एज that Q is equals to U plus W, or for small changes you can also write it as dQ is equal to du plus
dw। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करें तो देखो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। dw को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। लेट्स से के ये एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx अगर थी तो फोर्स आपके पास होगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx इज इक्वल टू dw। तो dw कैन आल्सो बी रिटन एज pdv। प्रेशर वही रहेगा, एरिया इनटू dx इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। So finally you can write dq is equals to du plus pdv. So this is the equation of the first law of thermodynamics. ठीक है? Yes, sir. ठीक है। Now first law of thermodynamics क्योंकि इक्वेशन की फॉर्म में हमने समझा और वो ये कहता है कि जो whole energy है, whatever be the energy we are giving to the system, that is getting divided into two parts, internal energy of the system and work done। अच्छा, अब यहां से हमें समझना है बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर जनरली देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि देयर आर डिफरेंट थर्मोडायनामिक स्टेट्स, ठीक है, तो वो जो डिफरेंट थर्मोडायनामिक स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस कौन कौन सी हो सकती हैं। So there are 5 different types of processes, thermodynamic processes. Thermodynamic processes. पहला, सबसे पहली प्रोसेस है आइसो थर्मल प्रोसेस। दूसरी है आइसो कोरिक प्रोसेस। तीसरी है आइसो बारिक प्रोसेस। चौथी है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। पांचवी है एडियाबैटिक प्रोसेस। सबसे पहले बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है और आइसोथर्मल प्रोसेस को आप कैसे समझ सकते हो। एज द नेम सजेस्ट आइसोथर्मल प्रोसेस, इट मींस यहां पर टेम्परेचर रिमेन्स सेम। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, चलो इसको समझने के लिए, हर प्रोसेस को समझने के लिए हम बेटा यहाँ पर कुछ वो भी बनाते जाएंगे, इसके डायग्राम्स भी बनाते जाएंगे। ठीक है, और वो जो डायग्राम्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं पीवी इंडिकेटर डायग्राम्स। तो पीवी इंडिकेटर डायग्राम्स हम यहाँ साथ साथ बनाते चलेंगे। अच्छा, इस इक्वेशन को मैं यहीं पर लिख रहा हूँ ऐसे ही, dq is equals to du plus pdv। लिखो बेटा सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। It is a thermodynamic process. It is a thermodynamic process in which the pressure and volume of the system changes. Pressure and volume of the system changes, but temperature remains constant. Temperature remains constant. लिख लिया? Yes, sir. In this process,
the exchange of heat between the system and surroundings is allowed. लिख लिया? And from the system and surrounding. Is allowed. An isothermal process has to be very slow, example of an isothermal process is melting. ठीक है? सो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन रिपीट कर दो एक बार, कैसे बनाई आपने? फर्स्ट लॉ की इक्वेशन थी बेटा, मैंने बोला whatever be the amount of heat we are giving to the system gets divided into two parts, or it gets distributed into two parts. First, in increasing the internal energy of the system. Second, जब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है तो सिस्टम एक्सपैंड होगा या कंप्रेस होगा. ठीक है? नाउ इट डिपेंड्स. अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली सिस्टम एक्सपैंड होगा, टेम्परेचर अगर घटेगा तो ऑब्वियसली सिस्टम कंप्रेस होगा. तो it gets divided into two parts. First, in increasing the internal energy of the system and in doing some work also. ठीक है? यस सर. तो आइसोथर्मल प्रोसेस लिख लिया बेटा सबने? Yes, sir. और इसका जो एग्जांपल है वो है मेल्टिंग ऑफ एनी सब्सटेंस. कोई सब्सटेंस अगर अपने आप से मेल्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होता है. वहां देखा जाए तो प्रेशर और वॉल्यूम आर वेरिंग. नाउ अगर हम इक्वेशन ऑफ स्टेट यहां यूज करें तो इक्वेशन ऑफ स्टेट का जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है? PV is equals to nRT, and for 1 mole of a gas, 1 mole of an ideal gas, PV is equals to RT. So for isothermal process, T is constant, therefore PV is equals to K, a constant quantity. Here R is the universal gas constant, और अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए तो PV किसके इक्वल हो गया? K के इक्वल हो गया. यानी हम कह सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ठीक है? ओके सर. और अगर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तो इसका जो पीवी इंडिकेटर डायग्राम बनता है बेटा वो कुछ ऐसा बनता है. लेट्स से कि गैस यहां पर थी, दिस इज P, दिस इज V, और यहां पर P, V और T कुछ हमारे स्टेट वेरिएबल्स थे. नाउ स्टेट वेरिएबल्स आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जो कि हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स थे, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स. अब हमने कहा गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड. When the gas is allowed to expand means volume increases and pressure decreases. तो इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा कर्व बनेगा. ठीक है बेटा? Yes, sir. So this will be your P2, V2, but T remains same. क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग. ठीक है? अच्छा, इसको ना और थोड़ा सा वो बना सकते हैं ऐसा करके.
ठीक है। सर ये ऐसे थोड़ा ऊपर की तरफ क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे नीचे से कम नहीं होना चाहिए था, मतलब हाँ, पूरा। क्या मतलब बेटा? सर ग्राफ एक बार ही बता दो। आप ऐसा बनाना चाह रहे हो? सर ऐसा लग रहा है, ऐसा भी होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि आइसोथर्मल का जो स्लोप होता है ना, ठीक है, वो बहुत कम होता है। ठीक, तो कम होने की वजह से इट ऑलवेज रिमेन्स लाइक दिस। मैं इसको और ज्यादा लेसर स्लोप के साथ भी बना सकता था, यानी कि मैं इसको यहां बनाने के बजाय ना यहां भी बना सकता था। अब इसका स्लोप और भी कम हो गया, बट दिस इज मोर आइडियल, ये जो मैंने बाद में बनाया है। ठीक है, एक्चुअल में होना कुछ ऐसा ही चाहिए। ठीक है, सर स्लोप कम इसलिए क्योंकि स्लो प्रोसेस है। ये स्लो प्रोसेस है। यस। दूसरी बात, यहां वॉल्यूम में वेरिएशन ज्यादा है, प्रेशर में वेरिएशन उतने ज्यादा नहीं होते हैं। ओके सर। ठीक है, वॉल्यूम में वेरिएशन ज्यादा होते हैं, प्रेशर में उतने ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते हैं, एंड इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसीलिए इसका कर्व, इसका स्लोप कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक को एक नाम और दे सकते हैं, इसको हम लोग आइसो वॉल्यूमिक भी कह सकते हैं। आइसो वॉल्यूमिक का मतलब वेयर द वॉल्यूम रिमेन्स सेम। लिखो आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस। It is a thermodynamic process that that takes place. It is a thermodynamic process that takes place at constant volume of the system. At constant volume of the system. लिख लिया? सर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। हो गया? हाँ जी सर। अब इसका पीवी इंडिकेटर डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखो, आइसो वॉल्यूमिक के लिए ये बना दिया। इसको यहां से बोर्ड क्लियर कर दूं या यहां से कर देता हूं? ये तो था आइसोथर्मल। अब देखो बेटा आइसो वॉल्यूमिक के लिए, आइसोकोरिक या आइसो वॉल्यूमिक। ये प्रेशर, ये वॉल्यूम। हमने कहा कि प्रोसेस रहे आइसो वॉल्यूमिक यानी आइसोकोरिक। अच्छा एक बात बताओ, मान लो एक सिलेंडर है, और जैसा कि अभी हमने पहले लिया, एक सिलेंडर विच इज फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन। तो आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस को हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे? लेट्स से कि आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसा दिखेगा? देखो ध्यान से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स
हमारे पास होता है dq is equals to du plus dw. As the process is isovolumic, it means dv is 0, change in volume is 0. अगर change in volume 0, therefore dw is equals to 0. It means whatever be the heat we are giving to the system is dissipated in increasing the internal energy only. ठीक है? क्या ये बात समझ clear में है? नहीं आया सर। अच्छा देखो, आइसोवॉल्यूमिक का मतलब क्या? वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी द प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. यस सर। अगर प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो dw का फॉर्मूला क्या था बेटा? अभी थोड़ी देर पहले लिख पाया, pdv. Yes, हाँ जी sir. सर। dv means change in volume. अगर change in volume हमारा कांस्टेंट हो, यानी change in volume means change in volume 0 हो, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो change in volume 0 हो गया. हाँ जी सर। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट और हमने कहा चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया, तो dv 0, इट मींस होल dw इज 0. यस सर। तो जितनी भी हीट आप दे रहे हो सिस्टम को, दैट हीट इज गेटिंग कंपेंसेटेड ओनली इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. हाँ जी सर, इक्वल हो जाएंगे। तो dq du के बराबर हो गया. यस सर। तो इसका आगे सर। तो इसका पीवी इंडिकेटर डायग्राम कैसा बनेगा? कुछ ऐसा. ये देखो, वॉल्यूम इज कांस्टेंट. ठीक है? ओके सर। सर इसका कोई एग्जांपल नहीं है इस प्रोसेस का? हाँ बिल्कुल हो सकता है ना. अब देखो, आइस है, ठीक. आइस जब मेल्ट होती है तो क्या वॉल्यूम चेंज होता है? नेग्लिजिबल चेंज होता है. यस सर। इतना नेग्लिजिबल कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो दैट इज क्लोज टू द आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस. Yes, sir. ओके सर। नेक्स्ट आ जाओ, आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब हुआ प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है? लिखो, it is a thermodynamic process. It is a thermodynamic process that takes place at constant pressure. It is a thermodynamic process that takes place at constant pressure. Example क्या हो सकता है? बोलो. सर कांस्टेंट प्रेशर है। हाँ, आइसोबारिक है तो कांस्टेंट प्रेशर हो गया. यस सर। क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? Freezing of water जब ice बनती है. फ्रीजिंग ऑफ वाटर जब आइस बनती है. सर जो एक्सपेरिमेंट्स हम कैरिड आउट करते हैं लैब्स में, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होता है ओपन कंटेनर्स में। एग्जैक्टली यही बात. अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट हीट से रिलेटेड कर रहे हो तो दैट एक्सपेरिमेंट इज बीइंग डन एट कांस्टेंट प्रेशर, और वो कांस्टेंट प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो आप एक सिंपल एग्जांपल भी दे सकते हो. आप घरों में पानी को गर्म करते हो तो हीटिंग वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आइसोबारिक प्रोसेस. ठीक है? ठीक है? Heating any substance at atmospheric pressure is called isobaric process. ठीक है बेटा? यस सर।
How will you draw the PV indicator diagram for this? देखो, pressure, volume. So this is the PV indicator diagram for isobaric process. ठीक सर है? इसके अंदर भी तो dq is equal to du होगा ना? है बेटा? सर इसके अंदर भी dq is equal to du होगा ना अगर हम फर्स्ट लॉ के हिसाब से चलें? प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर, बट वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है. यस सर. तो dq is equals to du नहीं ले सकते? हाँ जी सर. ओके ओके. ठीक है. नेक्स्ट लिखो बेटा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. A quasi-static process is an infinitely slow process in which the system changes its variables so slowly that it remains in thermal and mechanical equilibrium. It remains in thermal and mechanical equilibrium with its surroundings throughout. With its surroundings throughout. लिख लिया? लिख लिया बेटा? सर एक बार रिपीट कर दोगे? हाँ. Quasi-static process is an infinitely slow process in which quasi-static process is an infinitely slow process in which the system changes its variables so slowly that it remains in thermal and mechanical equilibrium with its surroundings throughout. सर इसका क्या एग्जाम्पल है? Actually, quasi-static process is a hypothetical construct. ठीक है, तो इसका कोई as such हम लोग एग्जाम्पल नहीं दे सकते. ठीक है, तो हाँ आप ये जरूर कह सकते हो, बट नहीं भी कह सकते, क्योंकि हमने जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात की और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को जब हमने डिफाइन करा था, तो वहां हमने ये कहा था
कि जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, साथ ही साथ मास एंड कॉम्पोजिशन। तो बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे लोग कहते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यस, अगर आप सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में बात करना चाहते हो तो इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉसिल फ्यूल्स बनने में, तो हाँ हम कह सकते हैं कि वो एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हुई। बट वहां पर पांचों स्टेट वेरिएबल्स में से कॉम्पोजिशन वेरी कर गया। कॉम्पोजिशन इज नॉट मतलब कॉम्पोजिशन इज नॉट द सेम आफ्टर द कन्वर्जन into fossil fuels। तो हम कह नहीं सकते, ये एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, हम मान सकते हैं कि हाँ ऐसा भी कुछ होता होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। बेटा क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट लिखें एडियाबेटिक प्रोसेस। लिखो, इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which the system is insulated from the surroundings, in which the system is insulated from the surroundings and there is no exchange between no exchange of heat, in fact no exchange of heat between the system and surroundings. There is no exchange of heat between the system and surroundings. अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करें कि ये एक कैसी प्रोसेस है, तो यहां ध्यान से देखें। फर्स्ट लॉ कहता है dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw, जिसको कि आप लिख सकते थे dq इज इक्वल्स टू du प्लस pdv। तो हमने ये कहा इट इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट between the system and surroundings. When there is no exchange of heat between system and surroundings, तो बेटा dq 0 हो गया। When there is no exchange of heat between the system and surroundings, तो dq को 0 हो जाना चाहिए। जैसे ही dq 0 हो जाएगा तो 0 इज इक्वल्स टू du प्लस pdv बचा, तो आप इसको लिख सकते हैं du इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ pdv। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं du इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dw, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, Yes, sir. अब इधर इसका पीवी इंडिकेटर डायग्राम अगर बनाए तो वो कुछ ऐसा बनता है। ये प्रेशर, ये वॉल्यूम। आइसोथर्मल के लिए देखो इसका कर्व बहुत छोटा है, यानी कि इसका स्लोप बहुत छोटा है, लेकिन एडियाबेटिक के लिए इसका स्लोप सफिशिएंटली लार्ज होगा। तो मतलब ये हुआ दिस वाज एन एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, तो ये वाली प्रोसेस कैसी होगी? एक्सट्रीमली फास्ट। तो दिस इज अ सडन प्रोसेस। तो डेफिनेशन के अंदर आप लिख भी सकते हो इस बात को, जहां आपने लिखा इट इज अ थर्मोडायनेमिक
process in which there is no exchange of heat between the system and surroundings, वहां ये एक line add कर लो, it is a sudden process and there is no exchange of heat between the system and surroundings. आप definition ऐसे भी दे सकते हो. So what are the examples of adiabatic process? Adiabatic process का example हो सकता है जैसे आप एक साइकिल के टायर के अंदर हवा भरते चले जाए and suddenly it burst, तो bursting of टायर ट्यूब, या आप जैसे अभी आप लोग बैठे हैं आराम से एंड सडनली आपने ऐसे क्लैप किया, ये जो क्लैप साउंड आती है दैट इज अगेन इज द बर्स्टिंग ऑफ एयर बेसिकली. तो ये भी क्या हुआ, एक सडन प्रोसेस है. यहां हुआ क्या कि आपने जैसे ही अपने दोनों हाथों को, अपने दोनों पाम्स को आप क्लोज लेके आए और जब ये एक दूसरे को हिट करते हैं तो एक साउंड आई. अब मैं क्या करूं, मैं बहुत धीरे से इसको पास लेके आऊं और ऐसे बंद करके वापस ले जाऊं, तो क्या आपको कोई साउंड सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी, खुद से भी करके देखेंगे तो. लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको साउंड सुनाई देगी. ठीक है, तो अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोनों हाथ आपस में हिट कर रहे हैं तो साउंड तो आएगी आएगी. लेकिन ये साउंड है किस चीज की? एक्चुअल में अगर आप वैक्यूम में खड़े हो जाएं जाके और वहां पर ऐसा करने की कोशिश करें तो यू विल हियर नथिंग. क्यों वहां कोई मीडियम ही नहीं है. अब मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रैवल कैसे करेगा? तो साउंड आई कहां से? साउंड आती है जब आपने ऐसे हिट करा तो जो एयर यहां पर कंप्रेस हो गई थी, दैट एयर, कंप्रेस्ड एयर गेट्स रेरिफाइड. और वो इस तरीके से जब रेरिफाइड होती है, कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस होते हैं साउंड के, गैस के, तो वो जो रेरिफैक्शंस होते हैं वो एक बर्स्ट के साथ होते हैं. इट मींस हमने गैस को कंप्रेस किया adiabatically, suddenly. It is a fast process, sudden process. ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. तो जो गैस इक्वेशन होती है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, वो होती है आपके पास PV raised to the power gamma is equal to K. अब यहां पर what is this gamma represents? Now gamma is, लिखो gamma. Gamma is defined as the atomicity of the gas. Gamma is nothing but atomicity of gas. And is given by the ratio of specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume. Specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume. एक और बात यहां याद रखने वाली है और वो ये कि गामा 1 से बड़ा होता है. गामा 1 से बड़ा होगा, और अगर गामा 1 से बड़ा है बेटा तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं Cp बड़ा है Cv से. ठीक है? ठीक है? ओके सर. ओके सर. Cp Cv से बड़ा है, इसकी एक्सपेंशन की इसका एक्सपेंशन का रीजन थर्मल एक्सपेंशंस में लिखवाया था मैंने, why Cp is greater than Cv. तो ये वही रीजन है, वही पर्टिकुलर चीज है why Cp is greater than Cv. तो हमने वहां पर भी बात की थी, अगर हम कुछ हीट प्रोवाइड करें किसी भी एक सिस्टम को, तो अगर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कराने के लिए यूज करता है तो दैट इज द हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम. और ये हमने आज देखा अभी कांस्टेंट वॉल्यूम में
आइसो वॉल्यूम में हमने देखा जितनी भी हीट आप दे रहे हो वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जा रही है। तो इस dq को हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 मोल के लिए CVDT लिख सकते हैं, ठीक है। dq का फॉर्मूला क्या होता है, mcdt होता है ना यस सर। बेटा। जब स्पेसिफिक हीट करा था तो हमने एक फॉर्मूला करा था Q इक्वल टू MC डेल्टा यस या सर। MCT, ठीक है। तो अगर उसको हम लोग लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल्स टू mcdt फॉर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इट कैन बी रिटन एज dq इक्वल टू mcvdt, ठीक है। एंड फॉर 1 मोल ऑफ गैस दिस बिकम्स CVDT ओनली, ठीक है। ओके सर। यहां तक का पार्ट अच्छे से पढ़ के रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बात करेंगे मेयर्स फॉर्मूला की और वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशंस एंड कंप्रेशंस की। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, और नेक्स्ट क्लास के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपका फिनिश ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। तो तब तक के लिए इसको रीड आउट कर लें, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बट पढ़ेंगे तो जो डेरिवेशन पार्ट है वहां पर हम क्या क्या कर रहे हैं वो ज्यादा क्लैरिटी आ जाए, ठीक है बेटा। ठीक है सर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम। ओके सर। थैंक यू सर। ओके बाय सर। बाय। सर